عزیز ساتھیوں اور دوستوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم استقبال رمضان کا جو خطبہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ رمضان کو کس طرح سے ویلکم کرنا ہے، اور رمضان المبارک کو، رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور ہم کو رمضان المبارک میں جو ہے کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی حدیث شریف سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، یعنی تم پر ایک باعظمت مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ شہر مبارک، فرمائے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ مبارک مہینے میں ایک ایسی بھی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، فرمائے یعنی شب قدر کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمائے لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی جو بندہ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہے، لیلۃ القدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر جو ہے 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ جو بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور اس میں وہ جو ہے مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ادا کرا، تو گویا کہ اس کو ایسا ثواب عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ 1000 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کرا جی۔ اور اسی طرح سے اگر وہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرا تو اس کو 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا، یعنی جو بھی اعمال کیے جائیں گے ان کا ثواب 1000 کے برابر دیا جائے گا۔ تو یہ اتنی مبارک رات جو ہے وہ رمضان المبارک کا ایک پارٹ ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، جی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ دیکھیے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، روزے کی ایکٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جی۔ یہ روزے کی ایکٹنگ کیا بلا ہے؟ یہ روزے کی ایکٹنگ یہ ہے کہ روزہ رہنا اور اس کے بعد سست ہو جانا جی۔ اکثر ہم بچوں کو بھی دیکھتے کہ روزہ رہنے کے بعد جو ہے اسکول جاؤ بیٹے بول، تو بچے جو ہے نہیں میں روزہ ہوں آپ میرے کو اسکول جاؤ بول رہے ہیں جی۔ اور بچوں کو ہم بولے بابا سودا لے لے گا گھر کا جا کے، میں روزے میں ہوں میرے کو سودا لاؤ بول رہے ہیں۔ تو مطلب میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں چھوٹے بچوں کو بھی کہ بابا آپ جب روزہ رہ رہے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے رہ رہے، اب ریاکاری کرنے کے لیے روزہ رہ رہے جی۔ میں روزہ ہوں بتاتے پھرنے کے لیے روزہ رہ رہے ہیں۔ اور بعض نوجوانوں کو بھی ہم اس کے اندر دیکھتے جی کہ رات بھر شہر گھوم رہے شہری کے بعد، کیونکہ 24 گھنٹے مارکیٹ کھلی ہے، رات میں آرام کرنے کے بجائے، رات میں سونے کے بجائے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ گپ شپ کر رہی، جو بیکار جو ہے راتوں میں چکر لگا رہے، اور آ کے فجر کے سحری کرے، فجر پڑے سوئے، تو پھر جو ہے وہ عصر کے بعد ہی اٹھے، تو پورا روزہ سونے میں چلی آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ پسند ہے، روزے کی ایکٹنگ پسند نہیں ہے۔ تو جعل اللہ صیامہ فریضہ، روزہ ہم پر فرض ہے۔ روزے میں آپ کو بھوک کا احساس ہونا جی، بھوک کیا چیز ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے جی، کھانے کی اہمیت کیا ہے، پینے کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ محسوس کرنا روزے کی حالت میں رہ کے جی۔ تو یہ ہے روزہ، جعل اللہ صیامہ فریضہ، فرمائے رمضان کے دنوں میں روزہ تم پر فرض ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور فرمائے قیام اللیل تمہارے اوپر نفل ہے جی۔ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنا ہے۔ قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یعنی تراویح پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اور جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قیام اللیل میں آتی ہیں۔ شب بیداری کرنا، رات بھر جو ہے جتنا آپ سے ممکن ہو سکے اتنا رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، سبحان اللہ، قربان جائیے یہ الفاظ پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے کہ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے جی۔ اندازہ لگائیے آپ، فرض اور نفل اس میں کیا فرق ہے؟ اولیاء اللہ صالحین فرمائے اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ فرض اور نفل میں ایسا فرق ہے جیسا خالق اور بندے میں فرق ہے، فرمائے جی۔ مالک اور بندے میں، معبود اور عبد میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی فرق فرض اور نفل کے ثواب میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ ثواب کا اتنا زیادہ فرق کیوں ہوتا ہے نفل اور فرض میں؟ فرض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا عمل ہے، نفل جو ہے وہ ہماری مرضی کا عمل ہے جی۔ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ کی مرضی ہے جی۔ آپ فرض نماز ادا کر لیے، اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے نفل ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی ثواب آپ کو عطا کرتا ہے۔ پر رمضان کی یہ برکت ہے کہ جو بندہ کوئی بھی نفل کام اس ماہ مبارک میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، بول کے فرمائے۔ اور پھر فرض کا کیا ہوگا؟ فرض کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور فرض کا ثواب ماہ رمضان میں
रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़र्ज़ के बराबर कर देता है फरमाए। यानी बंदा मोमिन कोई फ़र्ज़ अमल करे तो उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पे कोई रमज़ान के महीने में फ़जर की नमाज़ अदा करा या कोई भी फ़र्ज़ नमाज़ अदा करा, तो मिसाल के तौर पे कोई 2 रकात फ़र्ज़ फजर के अदा कर रहा है, गोया वो 70 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फ़र्ज़ पढ़ रहा है। तो ऐसा अज़ीम महीना ये है, फ़र्ज़ का सवाब इतना ज़्यादा 70 गुना जो है वो बढ़ा दिया जाता है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वहुव शहरुस सब्र, और रमज़ान तो सब्र का महीना है फरमाए। जी, रमज़ान में भी अगर बेकाबू हो जा रहे हैं, ज़बान से गाली गलौज निकल रहा है, जी बेहयाई और बदकलामी की बातें आपकी ज़बान से निकल रही है, तो आपके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी, वहुव शहरुस सब्र, हुज़ूर फरमाए ये सब्र का महीना है फरमाए। किस पे सब्र? जी, किस पे सब्र? तवील तवील जो है रकातों पे आपको सब्र करना है। तरावी की लंबी लंबी रकातों पे आपको सब्र करना है, बैठ जाना नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जी तरावी की नमाज़ चलती रहती, बैठ जाते, और जो है वो फिर रुकू में इमाम साहब जब रुकू में जाते तो फौरी दौड़ते हुए आके रुकू में शामिल हो जाते। ये मजाक है। अल्लाह तबारक व तआला को तरावी पसंद है, तरावी की एक्टिंग पसंद नहीं है। घर में सो जाओ, अगर ऐसी इबादत करना है ज़बरदस्ती की तो घर में आराम कर लो। जी, मजाक बना के रखिए तरावी की नमाज को भी हमारे बच्चे। जी, पूरी तरावी होते रहती है, बड़े लोग खड़े रहते, बच्चे पूरे मस्त बैठे हुए रहते, और जब रुकू में जाते इमाम साहब दौड़ के रुकू में आ जाते। तो अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए नमाज पढ़ लें, ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला से मजाक कर रहे हैं। जी, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। जो नौजवान ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करें और फौरी तौर पे जो है तरावी को सही करें। और फरमाए वह शहर सबर, ये सबर का महीना, लंबी लंबी रकातों पे आपको सबर करना है। रात का वक्त है, 3-4 बज रहे हैं, गहरी नींद का मौका है, आपको क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सहरी करने के लिए उठ जाना है। तो नींद पे आपको सबर करना है, लंबी लंबी रकातों पे आपको सबर करना है। यानी रोजे में है, आप भूख लग रही है, मशरूब भी रखे हुआ है, फ्रूट भी रखे हुआ है, ठंडी सी ग़िज़ाएँ रखी हुई है, आप चाह के भी उसको हाथ नहीं लगा सकते, खाने पे सबर करना है। यानी रमज़ान में आपको सबर की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वस्सब्रु सवाबुल जन्नह, और जो बंदा सबर के साथ रमज़ान को गुजारता है तो याद रखो सबर का सवाब तो सीधे जन्नत है फरमाए। उसके बाद फरमाए वशहरुल मुवासात, और रमज़ान मुवासात का महीना है, यानी एक दूसरे के ख्याल का महीना है। जी, मेरे पीर मुर्शिद अक्सर ये जो है हदीस सुनाते हुए एक बात इरशाद फरमाते हैं, ये जुमला इरशाद फरमा के कि व शहरुल मुवासात, यानी एक दूसरे का ख्याल का महीना है। मतलब पहले ऐसा होता था, मैं भी अपने बचपने में देखा, आप हज़रात भी देखे होंगे अपने बचपने में। आजकल ये चीज़ कम हो गई। जब रमज़ान आ जाता तो पड़ोसियों में ऐसी जो है मोहब्बत जाग उठती कि वो जो है वो इफ्तार के करीब जो है वो क्या कहते हैं, इफ्तारी की कश्ती जम रही है, उसमें जो है वो पकौड़े भी आ रहे हैं, भजिए भी आ रहे हैं, हलीम भी है, दलिया भी है, जो चीज़ें उसमें होती है सारा कुछ जमा करके जो है ये घर में दे रहे हैं, वो घर में दे रहे हैं, सामने वालों के घर में दे रहे हैं, अपनी गली में भी जा रहे हैं, मस्जिद को भी जा रहे हैं। आजकल ये चीज़ कम हो गई, और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि नहीं भाई सबके घर में सब है, देने की क्या जरूरत है बाबा, सबके घर में सब है, यानी जरूरत है बोल के देना नहीं है, उन्होंने अमीर है फकीर है गरीब है बोल के देना नहीं है। आपको ताल्लुक़ मोहब्बत कायम रहे, आपस में जो है एक दूसरे का हाल चाल पूछने का मौका मिले, इसलिए आपको एक दूसरे के घर जो है इफ्तारी भिजाना है। जी, गरीब है वो, उसके घर में नहीं है, या फिर कोई अमीर है तो उसके घर में है, उसके घर में नहीं भी, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि उनके हाल चाल पूछने का मौका मिल जाए, आपको उनसे मुलाकात का मौका मिल जाए। जी, उनसे प्यार भरी बातें, 2 घड़ी प्यार भरी गुफ्तगू करने का आपको मौका मिल जाए, यानी ताल्लुक़ मोहब्बत कायम रहे, इसलिए भी आपको जो है मुवासात करना है, एक दूसरे का ख्याल करना है, और गली में देखना है कि कौन गरीब है, कौन भूखा सो रहा है, किसको खाना नहीं है, किसका इफ्तार का इंतजाम नहीं है घर में। हम पर ये लाजिम है कि इस माह मुबारक में हम एक दूसरे का ख्याल करें। जी, एक दूसरे की मिजाज, कोई बीमार है तो उसकी मिजाज पुरसी की जाए, कोई अगर परेशान है तो उसकी परेशान हाल है तो हमारा भाई इस माह मुबारक में उसकी परेशानी को दूर करने की हमको फिक्र करना है। और फरमाए व शहरु यज़दादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन, और रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। और फरमाए मन फ़त्तरा फ़ीहि साइमन कान लहु मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिहि व इत्क़ु रक़बतिन मिनन नार व कान लहु मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन युनतक़सा मिन अजरि शैइन। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर कोई बंदा जी इस मुबारक महीने में रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, व इत्क़ु रक़बतिन मिनन नार, और उसको जहन्नम से आज़ाद कर देता है फरमाए। और उसको एक मुकम्मल रोज़ा, वो जो रोज़ा रखा उसका सवाब तो उसको मिलना ही मिलना है, पर अगर वो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए, उसको रोज़ा खिलाए, तो फरमाए एक रोज़ेदार के सवाब एक बराबर उसको सवाब अता किया जाता है फरमाए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाए तो सहाबा ने अर्ज़ किया क़ालू या रसूल अल्लाह लैसा कुल्लना यजिदु मा युफ़त्तिरु अस्साइम। साहबा अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमें कुछ लोग इसकी इस्तिताअत नहीं रखते या रसूल अल्लाह लोगों को इफ्तार कराने के लिए। देखिए कैसी गुर्बत होती थी उनकी सहाबा के दौर में, आज हम कितना नाशुक्रापना करते हैं। यानी आज हमारे पास अगर कोई गरीब वो है जिसके दस्तरखान पे 4-5 डिश रखे हो, सहाबा कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें से कुछ तो ऐसे हैं कि हम इतनी इस्तिताअत नहीं रखते, हमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि दूसरे को इफ्तार कराए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबा के ये कहने पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला तमरा औ शरबतिन मा औ मुज़ग़तिन लबन व हुवा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर तुम्हारे पास पेट भर के रोज़ेदार को इफ्तार कराने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी तो मौजूद होगा, जी घर में दूध तो मौजूद होगा, घर में खजूर तो मौजूद होगा, एक खजूर दे देना, एक घूँट पानी और एक घूँट दूध का पिला देना, इससे किसी रोज़ेदार का इफ्तार खुला देना,
तुम्हारा पूरा एक मुकम्मल और एक रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। जी, अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। माह रमज़ान एक ऑफ़र है, अगर कोई बंदा इस माह मुबारक की ऑफ़र से इस्तिफ़ादा ना करे, बेनिफिट ना उठाए, फ़ायदा ना उठाए, तो वो बहुत ही बड़ा महरूम है। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमा, और रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के हैं फरमाए, और व औसतुहु मगफ़िरा, और उसके बाद के 10 दिन मगफ़िरत के हैं फरमाए। यानी इन 10 दिनों में खूब अल्लाह तबारक व तआला से रहमत तलब करना, फिर दूसरे अशरे में खूब अल्लाह तबारक व तआला से मगफ़िरत तलब करना। फिर फरमाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी जो 10 दिनों का हिस्सा है ना, वो जहन्नम से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए है। और हम अक्सर देखते हैं कि आखिरी अशरे में लोग जो है वो गाफिल हो जाते हैं, बाज़ारों की तरफ चल पड़ते हैं, और जो है शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, शॉपिंग सेंटर्स और मॉल में जो है अपना वक्त को ज़ाया कर देते हैं। आखिरी के जो 10 दिन है वो बड़े टॉप के दिन है जी, उसमें ही तो लैलतुल क़द्र की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और अफसोस की बात है उसी में हमारे लोग लापरवाही करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पहले 10 दिन, फिर उसके बाद के 10 दिन, और आखिरी के 10 दिन तो खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। और फरमाए वस्तगफिरू फीही मिन अर्बइन खिसाल खसलतैन तर्दून बिहिमा रब्बकुम। जी, और इसमें 4 चीज़ें कंपल्सरी करो, 2 तो ऐसी है जिससे तुम अल्लाह को राज़ी करते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वस्तगफिरू फीही अर्बइन खिसाल खसलतैन तर्दून बिहिमा रब्बकुम व खसलतैन ला गिना बिकुम अन्हुमा, और 2 तो ऐसी है जिसको लेके तुम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हैं, और 2 तो उसमें से तुम्हारी ज़रूरत है फरमाए। और फरमाए फशहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिरूना व अम्मल खसलतान लतान ला गिना बिकुम अन्हुमा फसअलून अल्लाह फ़तसअलून अल्लाह अल जन्नह व तऊज़ून बिही मिनन नार। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 4 चीज़ें ज़रूर कर लो रमज़ान में। क्या करो? कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेके तुम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हो, और 2 चीज़ें इसमें और ऐसी हैं जिससे जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फरमाए क्या करो? जन्नत मांगो अल्लाह तबारक व तआला से, और जहन्नम से पनाह मांगो फरमाए। जी, अल्लाह तबारक व तआला, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए रमज़ान में 4 चीज़ें कंपल्सरी कर लो अपने ऊपर। जी, ज़रूर कर लो 4 चीज़ें रमज़ान मुबारक में। क्या है वो 4 चीज़ें? 2 तो हुज़ूर फरमाए ऐसी है जिसको लेके तुम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हो, और 2 तो तुम्हारी ज़रूरत है फरमाए। पहली 2 क्या है? कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, और उसके बाद कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तसव्वुर के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करना। अस्तगफिरुल्लाह मीन्स सॉरी गॉड। जी, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मौला मेरे से गुनाह हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यानी ये तड़प के साथ, ये इज्ज़ो इंकिसारी के साथ, गिरिया उज़ारी के साथ, रोते हुए और अपने गुनाहों को याद करते हुए कसरत से रमज़ान मुबारक में हुज़ूर फरमा रहे हैं तो इस्तिग़फ़ार करना ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और ज़रूरी भी है। उसके बाद फरमाया जन्नत, अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत तलब करना, फिर अपने आप को जहन्नुम से बचाने की दुआ करना। जी, तो हमारे बुजुर्गान दीन ये 4 चीज़ों को एक साथ करते हुए बहुत अच्छी इसको अच्छे तरीके से पढ़ते थे। यानी अलग-अलग चीज़ें ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ना है, फिर जन्नत को ही माँगना है, फिर जहन्नुम से पनाह माँगना है। तो हमारे बुजुर्गान दीन कैसा पढ़ते थे इसको? ये 4 चीज़ों को एक जगह जमा करके पढ़ते थे। जी, मैं आपको पहले नॉर्मली पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तरन्नुम के साथ सुनाता हूँ। क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। जी, इसमें आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, इसमें आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़े, इसमें आप अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत भी मांगे और दोज़ख से पनाह भी मांगे। जी, ये ज़रूरी है, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, याद रखिए। उसके बाद फरमाए वमन अशबअ फ़ीहि साइमन सक़ाहु अल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मअु हत्ता यदख़ुलुल जन्नह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर कोई रोज़ेदार को पेट भर जो है वो इफ्तार कराए, उसको अच्छे से अच्छा खिलाए, और पेट भर कोई रमज़ान में किसी रोज़ेदार को आप इफ्तार कराते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैं उसको हौज़ कौसर से जो है वो अपने हाथों से जामे कौसर अता करूँगा फरमाए, और उसको जन्नत में दाखिला मिल जाएगा फरमाए। तो ये माहिम क्या सिखाया जा रहा है? बार-बार ये दूसरों को इफ्तार कराना। जी, अगर आपके पास खाना मौजूद नहीं है तो भी जो है खजूर भी है, पानी भी हो, तो उससे किसी रोज़ेदार का इफ्तार कराना। क्या समझाया जा रहा है? जी, अपने से बढ़कर लोगों की भूख का ख़्याल करना है। लोग अपने इफ्तार की फ़िक्र छोड़ के दूसरों के इफ्तार की फ़िक्र करना है। यानी रमज़ान हमको इंसान बनना सिखाता है हज़रात गिरामी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अमल के मैदान में आगे आएँ। जी, कसरत से इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े रमज़ान के महीने में, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़े, उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करें, बहुत गुनाह है हमारे। जी, हम गिनते बैठ जाएँगे तो सारी उम्र निकल जाएगी, इतने उठते बैठते हम गुनाह करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के ज़रिए हमको मौका इनायत फरमा रहा है। अगर हम इस मौके से फ़ायदा नहीं उठा रहे तो याद रखिए हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं है। जी, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़िए, और अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत मांगिए और जहन्नम से जो है अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगिए। हुज़ूर ने हुक्म फरमाया है 4 चीज़ें करने का, और इसको अगर एक जगह जमा करके आप पढ़ना चाहते हैं तो यूँ पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये तस्बीह आप
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ضرور پڑھیے، اور اپنے وقت کو ضائع مت کریے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔